Assalamualaikum bachcho. I will do exercise 11B in this video, and math is D2. The topic over here is what? Trigonometry. In first question, there is a part in which it is being asked to calculate the unknown to find the value of unknown sides. Over here, this is first part of question 1, exercise 11B D2. Given values over here is this 15 centimeter, this is the angle which is 67, and this is the side, so which is a centimeter. We have to calculate this a. What is the value of a? We will use trigonometric functions to calculate this value. So you know that this is right angle, the side just opposite to right angle, it is called hypotenuse, and the side which is just opposite to angle, given angle over here is 67, the side just opposite to this 67, it is called perpendicular or opposite side. The side just adjacent to this one is called adjacent side or base. We have to calculate this value a. If you look at this side is what? This is perpendicular or opposite. The given side is hypotenuse, which is over here is 15 centimeter. You know that there are three trigonometric functions so far in your syllabus of O level. So one is sine theta, this trigonometric ratio, then cos theta, then tan theta. These are three trigonometric ratios which are in your syllabus. So what is sine theta? Sine theta is perpendicular or hypotenuse. You can also say opposite over hypotenuse. Cos is base over hypotenuse. It is also called adjacent side over hypotenuse. And what is tan theta? This is perpendicular or hypotenuse, or adjacent over, perpendicular or base, or adjacent over, opposite side over adjacent side. O over A. O opposite side, A adjacent side, perpendicular or base. Now, what is to be calculated? A. What is the other side which is given? This is 15. A is perpendicular and 15 is hypotenuse. So you know that perpendicular or hypotenuse. Over here is written. This is the trigonometric ratio we will use, which is sine theta. I will use over here is sine theta. मैंने sin theta किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि unknown side जो कि A है, it is just opposite to 67, so it is opposite side are perpendicular, and this is hypotenuse. So I will write over here is opposite side over hypotenuse are perpendicular over hypotenuse. Theta, this symbol, this is theta. It is a Greek alphabets. So theta is over here is angle which is 67. I write over here is 67. Opposite side is what? A. Hypotenuse is 15. I will use calculator to find the value of what? Sine theta. I write sine 67. So its value is 0.92. I write over here is 0.92 A over 15.
तो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.92 मल्टीप्लाई बाय 15 ए इज इक्वल टू 0.92 multiply by 15. The answer is what over here? 13.8. So no, this is what? This is A part of question 1. No, I write B part of question 1 जो है. This is the triangle. This is right angle. Here this side is 0.5 centimeter. This side is what? B centimeter, and the angle given is 15 degree. अब ये look at this side and this side. The value of this side is given and the unknown side is B. You know that given angle is 15. The side opposite to right angle, this side is called hypotenuse. The side just opposite to given angle, which is 15 degree, this side, it is perpendicular or opposite side. Perpendicular or opposite side. This side which is adjacent to 15 degree, it is adjacent side. This is adjacent side or base. This is base. Sorry. Now I have to calculate what B. Given side is 0.7, which is perpendicular, and the value to be the value of the side which is to be calculated. Okay, the side whose value is to be calculated, it is hypotenuse, which is over here is B. I join these perpendicular and hypotenuse. You know that perpendicular और hypotenuse किसके equal होता है? Perpendicular और hypotenuse ये sin theta के equal होता है. Here I use again sin theta, this trigonometric ratio. Theta is what? The angle given. Angle is over here 15. I write sin 15. Perpendicular here is what? 0.7, and hypotenuse is what? B. So I calculate, I find the value of sin 15. The value is over here is what? 0.26. Now I put 1 over here, do cross multiplication. B is multiplied by 0.26 and 1 is multiplied by 0.7. If I write it over here, 0.26 multiplied by B, 1 is multiplied by 0.7. I shift this 2.6 on other side so that I can calculate the value of B. So 0.26 is over here. It is multiplied by B. When it is shifted to other side, it will divide. 0.07 into 1. So right over here is in denominator. No, 0.7 is divided by 0.26. The answer is what? 2.69. This is the value of B. तो ये क्वेश्चन 2 है अब 11B का, और इसमें हमने ए पार्ट जो है वो करने लगे हैं. तो इसमें अननोन साइड्स ये है. अगर आप ये 90 डिग्री ले लें तो इसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. दिस इज हाइपोटेन्यूज. द साइड जस्ट opposite to it, it is called perpendicular or opposite sides, and the side adjacent to it, बिल्कुल इसके साथ वाली, that is called adjacent side, या it is also called base. So we join this side which is to be determined and the given side which is hypotenuse. I will join. इसको ज्वाइन तो करना ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू तो ना दी हुई है ना हमने मालूम करनी. इसकी साइड जो है हमने फाइंड आउट करनी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी. इट इज ओवर हियर इज बेस, और व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपोटेन्यूज. वी ज्वाइन बेस और हाइपोटेन्यूज.
You know that base over hypotenuse, this trigonometric ratio is what? It is called cos theta. No, what is theta over here is 36. Base is what? A, and hypotenuse is 13.5. I calculate the value of cos 36. तो ये हमारे पास 0.81 है राउंड ऑफ करके, a over 13.5. तो डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0.81 मल्टीप्लाई बाय 13.5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर इज व्हाट? 13.935. अगर मैं यहाँ तक राउंड ऑफ कर दूँ तो ये 13.94 हमारे पास मीटर आ जाएगा. अब हमारे पास जो है, दिस इज बी पार्ट. नो लुक एट दिस बी पार्ट. गिवन साइड इज व्हाट? 70 डिग्री. टू साइड अननोन, it is over here is b meter, and the given angle is 61. Now the side opposite to this right angle, it is called what? Hypotenuse. ये हमारे पास एंगल दिया है, एंगल के साथ वाली साइड ये तो हाइपोटेन्यूज होगी ना. अब तो ये साथ वाली साइड जो है वो हो जाएगी जस्ट एडजेसेंट टू इट. इट इज कॉल्ड बेस. इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट साइड. The side just opposite to 61, it is termed over here is perpendicular, but we do not need to write over here it. So our concentration is, over focus is these two sides. ठीक है. अब ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. व्हेन वी जॉइन बेस को टू हाइपोटेन्यूज, व्हाट विल वी हैव cos थीटा. यहाँ थीटा जो है 61 है, cos 61. बेस हमारे पास क्या है जी? 17 है, और हाइपोटेन्यूज b है. तो cos 61 की वैल्यू जो है कैलकुलेटर हमें कितनी दे रहा है? इट इज़ 0.48. तो आई राइट 0.48. तो मैंने 0.48 जो है लिख दी है. इसके नीचे 1 डालकर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ. 0.48 इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 17. बी इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 0.48. तो आई डिवाइड 17 बाय 0.48. द आंसर कैलकुलेटर गिव मी 35.42. तो दिस इज क्वेश्चन 3 ए पार्ट. तो द साइड जस्ट ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज. हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ दिस साइड. दिस इज अननोन ए. द गिवन एंगल इज व्हाट? 28. द साइड जस्ट ऑपोजिट टू 28 गिवन एंगल, इट इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड आर perpendicular. The side just adjacent to this given angle is base or hypotenuse. Base or adjacent side. So this is known side, and what is this? This is the side whose value is to be determined. So we will join these two sides. So this is opposite side are perpendicular, and this is base. When we join perpendicular to base, we will get tan theta. So angle given over here is 28. Perpendicular is A, and base is what? 14. I calculate the value of tan 28. तो calculator give me its value 0.53. A over 14. Do cross. तो मैं इसके नीचे 1 डालकर क्रॉस कर लेता हूँ. 14 इज मल्टीप्लाई बाय 0.53. तो 0.53 multiply by 14, you will get the answer what? No, it is 7.42.
Now this is question 3 part B जो है, this is the given angle, this is the right angle, the side just opposite to right angle. So we do not consider this side because there is no need of this side. We have to determine only B, and given side is what, 13 centimeter. This is the given angle, the side just opposite to this given angle, it is called perpendicular or opposite side. And the side just adjacent to it other than hypotenuse, that is base. It is what, base or adjacent side. When we join opposite to adjacent, because these are two sides which we use in our solution. So this is what perpendicular, this is what base. You know that perpendicular or base is what called, what is it called? Perpendicular or base are opposite side over adjacent side. It is tan theta. Theta is the angle which is over here is 62.5, tan 62.5. Perpendicular or opposite side is 13, adjacent side is what, B. So I use calculator to find the value of 62.5, tan 62.5. Calculator give me the answer 1.92. I put 1 over here and do cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए दो फ्रैक्शन होनी चाहिए, एक इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पर है तो एक इक्वलिटी के राइट साइड पर है. ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. b is equal to 1 into 13 over 1.92. तो I use calculator and divide 13 by 1.92. The answer calculator gives me 6.77. No, this is the question number 4. If you look at this figure, here is a right angle triangle. There are two sides which are unknown, this and this. Angle given is 34. The side just opposite to right angle, that is called what? Hypotenuse. The side just opposite to this given angle, that is called perpendicular or opposite side. The side just adjacent to this angle, that is called base or adjacent side. Now look at, we have to determine the value of A, what is the value of A, and also the value of B. हम पहले वैल्यू ऑफ ए निकाल लें या बी निकाल लें. हमने क्या करना है, इस अननोन को नॉन वैल्यू के साथ जो है रिलेट करना है. दिस रिलेटेड टू दिस. What is this? This is perpendicular. What is this which is known side? It is hypotenuse. हमने इन दोनों को आपस में रिलेट कर देना. आपको इल्म होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जिसको ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के. तो साइन थीटा कितना? 34. परपेंडिकुलर कितना? ए है. हाइपोटेन्यूज 12 है. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. अब ये दूसरी जो साइड है वो ये है बी. इसको हम रिलेट कर देंगे इसके साथ. तो इन दोनों को रिलेट किया साइन की मदद से. एक अननोन है और एक गिवन है. एक अननोन है, एक नोन है. फिर हम इन दोनों को रिलेट करेंगे. एक अननोन है और एक नोन है. ये क्या है? बेस. और ये क्या? हाइपोटेन्यूज. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. You can also write adjacent over hypotenuse. That is called what? Called cos theta. Theta के, it is the given angle which is over here is 34 degree. Clear?
Base is what over here is b, hypotenuse what over here is 12. तो अब हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे। साइन 34 की वैल्यू जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में फाइंड आउट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाती है 0.56 राउंड ऑफ करके। अब इसके नीचे 1 डाल देते हैं। 1 डालने के बाद इसको क्रॉस कर लेते हैं। 0.56 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 को जब हम 0.56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर मुझे जो आंसर दे रहा है वो है 6.72। यहाँ कैलकुलेटर से मैं cos 34 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो कैलकुलेटर मुझे जो आंसर दे रहा है 0.8183 राउंड करके। अब इसके नीचे 1 है, जब आप क्रॉस करोगे 12 मल्टीप्लाई होगा 8.3 से और b 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.3 को मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो कैलकुलेटर मुझे जो आंसर देता है वो है दिस इज 9.96। b इज इक्वल टू 9.96 सेंटीमीटर। तो याद रखना है कोई भी फार्मूला, उस फार्मूले में 3, 4, 5 या जितने भी वेरिएबल्स हों उनमें से एक की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी होती है, बाकी की वैल्यू उसने दी होती है। अब यहाँ देखिए ये एक दिस इज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 है। तो पहले हम इनकी साइड्स को देख लेते हैं। दिस इज राइट एंगल। फर्स्ट सबसे पहले आपने राइट एंगल को लेकर हाइपोटेन्यूज चूज करना है कि विच साइड इज हाइपोटेन्यूज। इसके बाद गिवन एंगल जो है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है, उसको प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और इसकी साथ वाली साइड जो होती है वो एडजेसेंट साइड जो है वो कहलाती आर बेस कहलाती। तो हमारे पास जो है नॉन साइड ये है, ये इसके साथ हमने इसको रिलेट करना है और इसके साथ ही हमने इसको रिलेट करना है। अगर इन दोनों को रिलेट करोगे दिस इज व्हाट प्रीपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज। तो मैं इन दोनों को रिलेट अगर करता हूँ तो प्रीपेंडिकुलर ये साइड और ये हाइपोटेन्यूज है, तो प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा कहलाता है। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करता हूँ, नॉन साइड जरूर लेनी है और एक अननोन, अननोन को ना जोड़ा करें, एक नॉन और एक अननोन साइड, इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं। दिस इज व्हाट बेस और दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ एंगल जो है 43 है, तो अगर मैं साइन ये ले लेता हूँ साइन 43, परपेंडिकुलर इज व्हाट डी, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 16। यहाँ पर ले लेता हूँ कॉस 43, बेस इज व्हाट सी सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 16। नो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। साइन 43 की वैल्यू जो है कैलकुलेटर मुझे दे रहा है व्हाट इट इज 68, 0.68 डी ओवर 16। इसके नीचे 1 डालकर अब इधर भी एक फ्रैक्शन होगी, इधर भी एक फ्रैक्शन। याद रखना है इधर एक फ्रैक्शन हो इधर एक हो, कहीं अगर ऐसे हो जाए 6 प्लस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 5 ओवर 7 और आप इस तरह क्रॉस करें कि 7 इंटू एक्स 2 इंटू 5 प्लस 6, तो ये रॉन्ग है। सिंगल फ्रैक्शन इधर होनी चाहिए, सिंगल ही इधर होनी चाहिए, देन यू अप्लाई दिस रूल विच इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आप लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते जब तक कि सिंगल फ्रैक्शन इधर और सिंगल इधर हो। अब डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 विल मल्टीप्लाई बाय 0.68 डी। तो 16 को 0.68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर मुझे जो आंसर दे रहा है वो है 10.88। 10.88 व्हाट इज दिस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ दिस लेंथ जो है ओवर हेयर इज cos 43। आई विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर गिव मी द आंसर ऑफ दिस वन जो है 0.74। नो सी ओवर 16
put 1 over here, do cross multiplication. 0.74 is multiplied by 16. So C is what? तो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 11.84 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन 4 का जो सी पार्ट है, it is over here. If you look at, so first we will find the hypotenuse with the help of this right angle. This is hypotenuse. This is given angle. The side just opposite to given angle is called perpendicular or opposite side, and the side just close to it, just adjacent to it, it is called base or adjacent side. तो जैसे कि बताया था, आपके पास जो नोन साइड है ये है, इसको और एक अननोन को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो और इन दोनों को जोड़ दें, ये नोन और ये वाले, इन दोनों को। ये साइड क्या है हमारे पास? ये बेस है, और ये साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? तो यू नो डेट इट दिस इज कॉस थीटा। तो कॉस 44.2 इज इक्वल टू, तो बेस हमारे पास 7 है, हाइपोटेन्यूज f है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये क्या है हमारे पास? बेस, और ये क्या? परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें परपेंडिकुलर और बेस है। यू नो डैट परपेंडिकुलर और बेस कितना होता है? tan थीटा के बराबर। तो tan 44.2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर e बेस 7 e ओवर 7। अब जो है कैलकुलेटर की मदद से मैं cos 44.2 की वैल्यू निकालता हूँ। कैलकुलेटर जो मुझे आंसर दे रहा है 0.72 7 ओवर f। इसके नीचे 1 डालकर क्रॉस कर लेते हैं। 0.72 जो है मल्टीप्लाई बाय f, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.72 यहाँ नीचे लग जाए। हमने क्या निकालना है? f निकालना है ना। f के साथ 0.72 ना अटैच, इसको उठाना दूसरी तरफ, नीचे ले जाना। तो अब हम क्या करेंगे? 7 को डिवाइड कर देंगे 0.72 के साथ। तो कैलकुलेटर मुझे जो आंसर दे रहा है वो है 9.72। इसके साथ यूनिट डाल देना। अब हम इधर आते हैं, 1044.2 की वैल्यू जो है निकालते हैं। कैलकुलेटर ये मुझे वैल्यू दे रहा है 0.97 ई ओवर 7। इसके नीचे 1 डाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7 0.97 से, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ई से। तो कैलकुलेटर हमें आंसर जो दे रहा है मुझे 6.79 दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4, इट इज़ ओवर हियर इज डी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब आपको पता चल गया होगा, हाइपोटेन्यूज चेक करना होता है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। 90 के जस्ट ऑपोजिट। अब आपने देखना है एंगल ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ। इसके साथ वाली साइड क्या कहलाती है? बेस और एडजेसेंट साइड। इसके ओपोजिट साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड। हमारे पास नॉन साइड कौन सी है? ये है। इसको हमने अननोन साइड के साथ ज्वाइन कर देना, और इसको हमने इधर वाली अननोन साइड के साथ ज्वाइन कर देना। इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को। पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ये क्या? परपेंडिकुलर, इधर से ये साइड क्या? परपेंडिकुलर, और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये साइन होता है। तो साइन
21.5 8.9/h। फिर इन दोनों साइड को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो है हमारे पास बेस है और ये प्रिपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस है, बेस ओवर प्रिपेंडिकुलर नहीं है, प्रिपेंडिकुलर और बेस है। तो आपके पास जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको सामने रखकर देखना है कि बेस ओवर प्रिपेंडिकुलर करना है या प्रिपेंडिकुलर बेस। तो प्रिपेंडिकुलर बेस जो होता है वो tan थीटा होता है, tan 21.5। प्रिपेंडिकुलर हमारे पास 8.9 है, हाई बेस जो है हमारे पास g है। अब हमने आगे इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। साइन 21.5 है, कैलकुलेटर ये जो वैल्यूज दे रहा है वो 0.37 है राउंड ऑफ करके। इसके नीचे 1 डालने आपके लिए यहाँ क्रॉस करेंगे, h जाकर 0.37 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 8.9 से, फिर h इधर रहने देने 1 पॉइंट इंटू 8.9 ओवर। अब 8.9 को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना 0.37 के साथ। तो कैलकुलेटर मुझे जो आंसर दे रहा है वो 24.05। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, tan 21.5 जो है लेता हूँ। कैलकुलेटर इसका जो आंसर देता है वो है 0.39। अब इसके नीचे 1 डालकर क्रॉस कर लेते हैं, 0.39 मल्टीप्लाई बाई जी, 1 मल्टीप्लाई बाई 8.9, फिर जी इधर रहने दें क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है ना। तो इसके साथ जो 0.39 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, ऑन दिस साइड इट विल डिवाइड 8.89। तो ऑपरेशन जो यहाँ पर है उसका रिवर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.39 मल्टीप्लाई हो रहा है, रिवर्स क्या होगा, डिवीजन। तो यहाँ वो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 8.9 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.39 के साथ। तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है 22.82। तो उम्मीद है आपका ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर जो है वो हो जाएंगे, दुआ में याद रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो जो होगी उसमें मैं इसके बाकी क्वेश्चंस जो है वो करूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।